Hello children, this is the chapter number 4 of your geography book and page number 35. Today we will study about the distribution of rainfall. Parts of western coast and northeastern India receives over about 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the Sahyadris. Why do these regions receive low rainfall? A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. So children, this is the map of seasonal rainfall June to September. तो जून टू सितंबर में आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं यहाँ पर जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो अबव 400 सेंटीमीटर होता है. यहाँ पर मेंशन किया गया है रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स. तो जहाँ डार्क ब्लू वॉयलेट कलर है यहाँ पर अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल शो किया गया है और जो थोड़ा सा कम वॉयलेट है वहाँ पर 200 टू 400 सेंटीमीटर रेनफॉल दिखाया गया है. तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल हो रहा है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, हरियाणा, आसाम है, इन प्रदेशों में. और वहीं पर राजस्थान है और उससे जुड़े हुए जो पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल शो कर रहा है. एंड यू कैन सी द केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे जगहों पर, कर्नाटका है, ये सारे जगहों पर जो है रेनफॉल बिल्कुल ही कम है, 0 to 20 सेंटीमीटर है. तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में बारिश कम क्यों होती है? तो जम्मू कश्मीर में जो लेह है वहाँ पर भी जो बारिश की मात्रा काफ़ी कम है. देश के बाकी हिस्सों में जो बारिश की मात्रा है वो मीडियम रहती है. जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर उन एरियाज़ में भी जो हिमपात होता है वो लिमिटेड ही होता है. तो जो मॉनसून की जो नेचर है उसके परिणाम स्वरूप एक ईयर से दूसरे ईयर में होने वाले जो वार्षिक जो रेन है उसकी मात्रा में जो है चेंज होता है, भिन्नता होती है. अब यही वर्षा की विषमता होती है जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में कम बारिश होती है और कई क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है. जहाँ अधिक बारिश होती है उन एरियाज़ में बाढ़ें आ जाती हैं, जबकि जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर सूखे की आशंका बनी रहती है. So children, you have to read this map and also you have to read the annual rainfall map. Here is also given the indication कि सबसे ज़्यादा बारिश अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ हो रहा है ईयरली और सबसे कम 0 to 20 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है. So you have to study this map. If you have any doubt, you can ask me in doubt class. Now, monsoon as a unifying bond. You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. This enables northern India to have uniformly higher temperatures compared to other areas on the same latitude. Similarly, the peninsular plateau, under the influences of the sea from three sides, has moderate temperatures. Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. Nevertheless, the unifying influences of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alternation of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycle of the season. Even the uncertainties of rain and uneven distribution
are very much typical of the monsoons. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar, and the life of the people, including their festivities, revolves around this phenomenon year after year. People of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. तो चिल्ड्रन, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हिमालय है वह बहुत ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। पता नहीं हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ कितनी ठंड पड़ती, और इसके कारण जो टेम्परेचर है वो हाई बना रहता है नॉर्थ इंडिया में। और इसी तरह जो प्लेट्यूज में 3 साइड से समुद्र के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इस तरह से इस सारे प्रभाव के कारण टेम्परेचर की जो डायरेक्शन से उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। परंतु फिर भी जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है, यहाँ पर मॉनसून की जो एकता है यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो हवाएं होती हैं वो सीज़न के हिसाब से चलती हैं, और जो सीज़न होते हैं रिदमिक लाइन में चलते हैं। ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, एक लय में चलते हैं। जैसे कि समर है तो फिर समर के बाद बारिश आएगी, फिर बारिश के बाद ठंड आएगी, विंटर आएगी, फिर उसके बाद समर आएगी। इस तरह से बारिश की जो अनसर्टेनिटी है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल नहीं है, ये उसका एक कहना चाहिए विशिष्ट लक्षण है। और पूरे भारत में चाहे वो जीव हों, वनस्पतियाँ हों, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मानव जीवन हो, चाहे मानव जीवन के त्यौहार हों, ये सारे इसी मॉनसून के चारों ओर घूमते रहते हैं। मॉनसून के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, पूरे भारतवासी हर वर्ष मॉनसून के अराइवल की प्रतीक्षा करते हैं। ये मॉनसून विंड्स जो होती हैं ये हमें बारिश प्रदान करती हैं, और जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है उसमें तेज़ी लाती हैं और पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदियाँ जो कि सारे देश को एक दूसरे एकता के सूत्र में बांधती हैं, उन्हें भी रिवर वैली यूनिट का नाम दिया गया है। Children, here is your chapter number 4, Geography is finished. You have to do exercise by yourself. Complete your fair copy up to chapter 4, Geography.